Hello and a very good evening everyone. How are you guys doing today? Hi Archie, Advika, Advait, Ali, Anurag, good evening. Hi Aryan, Dev, Chelsea, Avni, good evening Dev, Dolly, Manan, Maitri. Hi Arshit, Shahnaz, good evening. Good evening Anurag, Advika, good evening. Thank you Aryan. Hi Nandan, I'm good Ali, how are you? Hi, how do you pronounce your name? Minakshi, okay. Minakshi, how are you? Can't hear you. Can anyone hear me? Am I audible? Good evening, Shaurya, Prakriti, Oshin, Ananya. My voice is low. Is it better now? I'm good. Minakshi, how are you? Good evening, Naitik. Hi, Rupansh. Nehal, good evening. Okay, Dhruv, thank you. Okay, so good evening once again, everyone. My name is Abhishek Soni, and I welcome all of you to this session on nouns and determiners practice session. Good evening, Chelsea. So in this particular session, we'll be talking about the practice part of these two topics. The first one is going to be nouns, and the second one is going to be determiners. Okay. Yes, Paul will be there, Aryan. Hi, Disney. Good evening. Sometimes that happens, Rishant. You'll understand more about reading comprehension in the upcoming sessions. Shanaz is not able to hear me. 1 second. We'll talk about it. Anubhav. Good, Rishant. Hi, Kaushiki. So shall we start the session now? Can I get a yes from everyone? Okay. 1 second. Yes, Aryan, I wrote it to all of you. Anurag, you can start solving RSMs now. There is no problem. Sir, why this session named as nouns and determiners not known? Why, Anubhav? Did we talk about nouns and articles in the previous session? Yes or no? Yes. Yes. This is the continuation of that that Dolly. Determiners are nothing but articles. Yes, it is. Determiners are articles. I'm going to explain it to you. Don't worry above, I'll explain. Now, I'll give you a brief idea about what determiners are. Articles are a part of determiners, but there are some other things as well, which we'll discuss now, and then we'll solve questions. Is it visible, everyone? Is the screen visible? Okay, so let's focus now. Everyone? Avni, they are, yes, they can be expected in the examination, spotting the error type of question. Now let's understand what are determiners. So determiners are those words which are used before nouns. Now this is the important part. Determiners are those words which are used before nouns. So that is why we discussed nouns beforehand, right? For example, if you use the word the is called an article, but this is known as a determiner because the is used before a noun, if you remember, right? Any article in fact is used before a noun. My is a determiner. This is a determiner. Some, 10, each, any, etc. These are what we call determiners, right? Why exactly do we call them determiners? We'll talk about it in a few minutes. The first kind of determiner is what we call articles. So we have two articles. First one is indefinite article. The second one is definite article.
right? So a, n indefinite articles and the is definite article. Both of these types of articles are called determiners. This is a technical term for articles. That is what we call, or we categorize it under determiners. For example, if I say I am a teacher, can you identify the noun in this statement, anyone? Noun here is teacher, agree? This is the noun. Now which word is used before a noun? Which word is used before a noun in this statement? A is used, right or not? And A, all of you agree that this is an article, A and the article, right? And this article here is a determiner. Why it is a determiner? Because it is used before a noun. क्या कुछ clear हुआ है? Good, it is indefinite article. Here we are talking about determiners as of now. Determiners are those words which are used before nouns. The first category of determiners is what we call articles, right? Take a look at the second example. She is an honest girl. In this situation, can you tell me an is used for honest or an is used for a girl? Can anyone tell me? Honest or girl? I'm saying an is used for which word? Tell me. Is it used for honest or girl? If you think about it, if I remove the word girl and I say she is an honest, does it make sense? Does it make sense now? Not at all. So that means an is used for which word? It can be used before any word, but it has to be used for a word, right? It is used for this noun girl. Now the point is, because we already have an adjective here, honest, I have to use it before this adjective. So because this word here, honest here, has O sound, that is why I'm using an here. तो एन जो यूज हुआ है वो गर्ल के लिए यूज हुआ है, बट बिकॉज वो ऑनेस्ट के पहले यूज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो हमको ए या एन में डिफाइन करना पड़ेगा. क्या कुछ क्लियर हुआ है? Sir, but an is only used in this sentence due to honest having the O sound, right? That is what I am trying to explain, Athar. Because यहाँ पर honest में O sound आ रहा है, इसीलिए उसके पहले आने वाला जो आर्टिकल होगा वो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. बट an किसको काउंट कर सकते हो आप? मुझे एक बात बताओ, A या N को हम किसके लिए यूज करते हैं? जो सिंगुलर होता है. ऑनेस्ट सिंगुलर होता है क्या? कैन यू काउंट ऑनेस्ट? नो. सो दैट मीन्स ऑनेस्ट, सॉरी, एन यहाँ पर गर्ल के लिए यूज हुआ है, बट बिकॉज वो ऑनेस्ट उसके पहले आ गया है, ये वाला साउंड वो यहाँ पर ले लेगा. यूज गर्ल के लिए हुआ है, तो एन यहाँ पर क्या है? डिटर्मिनर है. ही वेंट टू सी द ताज महल. नाउ यू टेल मी विच वन इज द नाउन हियर? नाउन क्या है? यस निहाल, करेक्ट. ऑब्वियसली ताजमहल इज द नाउन, प्रॉपर नाउन, टी कैपिटल एम कैपिटल, और उसके आगे क्या आ गया है? द. सो द हियर इज योर डिटर्मिनर. हाँ या ना? तो हमको याद क्या रखना है? आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं और आर्टिकल्स भी बोलते हैं. नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, यूज इंपॉर्टेंट है. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट वेदर इट इज अ डिटर्मिनर और एन आर्टिकल. हमको क्या करना है? ए का यूज कैसे होगा, एन का यूज कैसे होगा, द का यूज कैसे होगा. सिर्फ कैटेगराइज करने के लिए मैं अभी बता रहा हूं कि डिटर्मिनर्स होते क्या है. ठीक है, कुछ हुआ क्लियर? चलो, सेकेंड वाला जो होता है वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. इनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोला जाता है. अब एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूं. एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई आइदर अ नाउन और अ प्रोनाउन. मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमको और इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स. अच्छा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये सारे वर्ड्स इनफैक्ट एडजेक्टिव्स ही है? बताओ. Yes, Aditya, we'll be practicing questions today. Suraj, it is not used for honest, it is used for girl, but क्योंकि honest वहां पर आ रहा है तो वो उसके पहले आएगा. Okay, so take a look at the second point. Demonstratives में क्या क्या आ रहा है? So this, that,
these and those, इन चार वर्ड्स को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. These are called demonstrative adjective. अब adjective अगर मैंने बोला है, that means they must be modifying a noun or a pronoun. Modifying a noun or a pronoun, that is what we call adjective. Take a look at this example. I want those shoes. Can you tell me which one is the noun here? I will write down the definition of adjective here. Please wait. मैं नीचे लिख देता हूं डेफिनेशन, डोंट वरी. तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स आइदर अ नाउन or a pronoun is what we call adjective. For example, if I say he is a bad boy. Now मुझे ये बताओ bad यहां पर किस वर्ड के लिए लिखा गया है? कौन bad है यहां पर? बॉय. तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता? अच्छा बॉय तो तुम सबको पता इट इज अ नाउन, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये बैड बॉय को डिफाइन कर रहा है? कैसा बॉय? बैड बॉय. सो दिस इज एन एडजेक्टिव. हाँ या ना? बोलो भाई. और अगर आप नोटिस करो सारे डिटर्मिनर्स इनफैक्ट एडजेक्टिव्स ही है, बिकॉज वो किसके लिए यूज हो रहे हैं? किसके लिए यूज हो रहे हैं ये सारे डिटर्मिनर्स? दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन, तो दे आर एसेंशियली एडजेक्टिव्स. कुछ क्लियर हुआ है? चलो अब फिर से वापस आ जाते हैं. तो आई वॉन्ट दोज शूज में अगर आप ध्यान से देखो तो दोज किसको रिफर कर रहा है? दोज रिफर कर रहा है शूज को. शूज तो आपका नाउन है, तो ये क्या बन गया आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. अब दिस और दैट में क्या डिफरेंस है? सॉरी, दिस और दीज में क्या डिफरेंस है? दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स, दीज इज यूज्ड फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स, दोज इज यूज्ड फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट्स. मोहम्मद उस्मान, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? You can unmute yourself now, Mohammed Usman. Hello. Yes. Actually, sir, I joined the class a bit late. So ये आपने एक हल्का स्मॉल रिकैप दे सकते हैं? Cause सर मैं यहाँ से सब समझ में आ रहा है, बट इससे पहले आप क्या पढ़ा है, थोड़ा एक स्मॉल रिकैप प्लीज. तो मोहम्मद, वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनर्स टुडे. डिटर्मिनर्स ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड बिफोर नाउन्स और इसेंशियली दे प्ले द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव. अब उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है डिटर्मिनर्स की. हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये जानना जरूरी है अभी कि कौन कौन से वर्ड्स डिटर्मिनर्स होते हैं, बिकॉज दे कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ एडजेक्टिव्स. बट उतना ही जरूरी है. आपको यहाँ पर डेफिनेशंस के पीछे नहीं जाना है, ठीक है? तो पहला वाला हमने डिस्कस किया था, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट वन वाज आर्टिकल्स, दे आर आल्सो डिटर्मिनर्स. सेकंड वन में वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. उसमें दिस, दैट, दीज, दोस, ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं. I want that shoes, that is incorrect, Shaurya, because that is used for singular objects. Shoes are plural. That you can write, Krishnam. No problem, Janvi. I try to become a better version of myself every day. चलो आगे बढ़े. This is for singular. Yes, Nisar. This is used for singular. तो the next one is what we call possessive. Now possessive मैंने तुमको शायद बताया होगा कभी. Have we discussed possessives? What do we call possessive? क्या बताया था? Sir, if demonstrative will not be followed by a noun, then it would be demonstrative pronoun. Correct, Krishna. Yes, that is correct. बट दैट विल बी डिस्कस्ड इन प्रोनाउंस सेशन, तो अभी उस पर मैं डिस्कशन ज्यादा नहीं कर सकता. हाँ करेक्ट, मैं गर्लफ्रेंड वाला कुछ एग्जांपल दिया होगा, राइट? तो पोजेशन का मतलब क्या होता है? द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दैट समथिंग बिलोंग्स टू मी, आई ओन दिस थिंग, आई ओन दिस पर्सन, दैट इज व्हाट वी कॉल पोजेशन. तो ऐसे वर्ड्स जो पोजेशन को इंडिकेट करते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग को इंडिकेट करते हैं, दीज वर्ड्स आर व्हाट वी कॉल possessives. For example, my indicates possession, your indicates your possession, his indicates his possession, her indicates her possession, etc.
So these are the words they indicate possession. For example, this is my pen. Now this is the noun here, pen. ये आपका noun है. अब मुझे एक बात बताओ, ये my किसके लिए लिखा गया है? क्या है my? पेन, ऑब्वियसली. तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता ये माई पेन को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है? किसका पेन? माई पेन. तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता माई इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव हियर, और व्हाट वी कॉल डिटर्मिनर? गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब देर आर सर्टेन वर्ड्स विच वी कॉल क्वांटिफायर्स, जो नंबर्स को बताते हैं. दीज क्वांटिफायर्स आर ऑल्सो डिटर्मिनर्स. ठीक है, डिटर्मिनर्स का सिंपल मतलब अगर मैं तुमको एक लाइन में डिफाइन करना चाहूं, डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिटर्मिन करते हैं. सिंपल लैंग्वेज में ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिटर्मिन करते हैं, डिटर्मिन का मतलब होता है नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वो वर्ड्स होते हैं डिटर्मिनर्स. उसमें नंबर भी आ जाता है नाउन का, तो उसको बोलते हैं क्वांटिफायर्स. तो फ्यू, सम, मेनी, एनी, दीज वर्ड्स आर व्हाट वी कॉल क्वांटिफायर्स, जो क्वांटिटी को शो करते हैं. Yes, Mohammed. Sir, it's also a personal nouns. Which one, Suraj? Personal noun नहीं होता है, personal pronoun होता है सूरज. Personal pronoun वो अलग होता है, उसका यूज अलग होता है. Mine is a determiner. Mine is not a determiner. Mine एक possessive pronoun होता है, अली. मीनिंग ऑफ डिटर्मिनम. ओके अनुभव, डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स के पहले यूज होते हैं और नाउन्स को डिटर्मिन करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. दे आर व्हाट वी कॉल डिटर्मिनर्स. अभी क्लियर हुआ? नॉट नेसेसरीली जाप जी. Sir, how determiners act as adjectives? Udbhav, if my voice is very slow, please try to rejoin because others are able to hear me very, very clearly. क्या क्वेश्चन था, मैं भूल गया. हाँ, how determiners act as adjectives? अवनी, determiners adjectives इसलिए होते हैं because वो noun के पहले ही यूज होते हैं और noun के लिए ही यूज होते हैं. और noun के लिए यूज हुए मतलब they are modifying the noun, defining the noun, describing the noun. That is what we call adjectives. They are essentially adjectives. बस उनका नाम डिटर्मिनर्स है. वो क्वांटिटीज को बता रहे हैं. फ्यू क्वांटिटी बताता है, सम क्वांटिटी बताता है, मेनी क्वांटिटी बताता है, एनी क्वांटिटी बताता है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? दिस इज टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव प्रोबेबली. तो ये क्वांटिटी बताएगा. आई हैव 5 क्वेश्चंस. ये भी 5 यहां पर एक्चुअली क्या है? ये भी एक डिटर्मिनर है. नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखा है, देखो. तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस में ये एनी क्या है? किसके लिए यूज हुआ है? क्वेश्चंस के लिए यूज हुआ है. और क्वेश्चंस नाउन होता है, तो ये आपका डिटर्मिनर है. नंबर्स के केस में व्हेनेवर यू हैव नंबर्स जैसे 1 2 3 5 8 19 2000, जो भी नंबर्स होते हैं, दे आर यूज्ड बिफोर अ नाउन अगर, तो वो सिचुएशन में डिटर्मिनर्स है. फॉर एग्जांपल, आई हैव 3 एप्पल्स. अच्छा, ये 3 क्या है मेरे पास में? 3 किसके लिए यूज हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? 3 किसके लिए यूज हुआ है? एप्पल्स के लिए. तो तुम्हें नहीं लग रहा है 3 मॉडिफाइज द नाउन एप्पल्स? क्वेश्चंस काउंटेबल नाउन, राइट? तो ये 3 आपका डिटर्मिनर है. अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं, जिनको हम इंटेरोगेटिव्स बोलते हैं. क्वेश्चंस आस्क करने के लिए. फॉर एग्जांपल, विच, व्हाट, हुज, एटसेट्रा. ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको इंटेरोगेटिव्स बोला जाता है. और उनका यूज कैसे होगा? विच बुक डू यू प्रेफर. ये विच किसके लिए यूज हुआ है? विच किसके लिए यूज हुआ है? विच बुक, बुक के पहले यूज हुआ ना, ऑब्वियसली. बुक आपका नाउन है, तो ये आपका डिटर्मिनर है. तो ये जो क्वेश्चंस के लिए वर्ड्स यूज होते हैं, विच, व्हाट, हुज, इसमें हम ये डिटर्मिनर्स का काम कर रहे हैं. Can there be more than one determiners with a single noun in a sentence? Aryan, that may be possible depending on the situation. Now, exclamatives ऐसे words होते हैं तो exclamation show करते हैं, मतलब surprise, extreme disgust, ऐसे जो extreme anger, ऐसे जो words होते हैं उनको बोला जाता है exclamatives. For example, what,
सच। अब what तुम सोचोगे तो मैंने यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। अब वो इंटरोगेटिव होगा या एक्सक्लेमेटिव होगा वो उसके उसके यूज पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन हियर, so this is not an interrogative here, this is an exclamative. why? because ये exclamation mark आ रहा है। और ये what किसके लिए यूज हुआ है? this day के लिए यूज हुआ है। या अगर आप पूरा सोचो तो ब्यूटीफुल डे के लिए यूज हुआ है। क्लियर? ही इज सच अ गुड फ्रेंड। ये सच किसके लिए यूज हुआ है? ये फ्रेंड के लिए यूज हुआ है, गुड फ्रेंड के लिए यूज हुआ है। तो ये आपका डिटर्मिनर है, ये आपका डिटर्मिनर है। हाँ, यहां पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, सॉरी, ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है। वोंट गुड बी, कहाँ गया? वोंट गुड बी द डिटर्मिनर देयर? गुड इज एन एडजेक्टिव, इट्स एन एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव है, ये क्वांटिफाई नहीं कर रहा है। यस, देयर आर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, दिव्यांश। सर इन पॉइंट 7 can't A be the determiner? What a beautiful day. ये A ये भी हो सकता है, करेक्ट। मल्टीपल डिटर्मिनर्स हो सकते हैं ना, अभी तो बताया मैंने। Good is a modal, yes. Can you give one more example of exclamatives? Okay. What an amazing organ the human brain is. तो यहाँ पे आई एम नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, तो ये what किसके लिए यूज हुआ है? दिस अमेजिंग ऑर्गन विच इज द नाउन हियर। सॉरी, यहां तक आएगा वो, सिर्फ यहां तक, राइट? तो दिस इज योर डिटर्मिनर, दिस ऑर्गन इज योर नाउन, अमेजिंग इज द एडजेक्टिव। सूर्या WHO अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है हु इज। गुड इज नॉट एन एक्सक्लेमेटिव अर्शिया, नो। वो गुड को आप एक्सक्लेमेशन के लिए यूज नहीं करते हो। ओके आर्यन, क्वांटिफायर्स आई थिंक, राइट? ह्यूमन बॉडी इज अ नाउन, यस आर्यन। क्वांटिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की क्वांटिटी को बताते हैं। फ्यू मतलब कितने, सम मतलब कितने, मेनी मतलब कितने, एनी मतलब कितने। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स। यस, एक्सक्लेमेटिव्स आर यूज्ड टू शो एक्साइटमेंट एज वेल। शी इज सो गुड एट रीडिंग, सो विल बी द एक्सक्लेमेटिव, नो। So is never used for exclamation. That is incorrect, Natik. These are the only words that are used for exclamatives, Kartavya. Human brain is a noun, yes. Achal. So are you guys done now? Do we have any doubts? My main purpose today is to solve questions. I just wanted you guys to understand what are determiners, so that you don't ask the same question again in the future. These are determiners, not important at all to understand or to remember. सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इनका यूज कैसे होता है। ओके कोई तुमसे नहीं पूछेगा क्वांटिफायर में कौन से वर्ड्स आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन से वर्ड आते हैं, ये कोई नहीं पूछने वाला। क्या पूछने वाले हैं? एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें दोज का यूज गलत हो सकता है, दिस का यूज गलत हो सकता है, या माई का यूज गलत हो सकता है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। तो थियरी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यस, क्वांटिफायर्स आस्था। अमेजिंग इज एन एडजेक्टिव, अनुभव। नो अर्शित। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। So are the questions visible now? Chalo. Now let me read the directions first. Every sentence given in this test paper has been divided into 4 parts marked A, B, C and D.
The error lies in one of the parts, okay? Read the sentence carefully and mark the incorrect part. However, if you feel the sentence contains no error, mark part D. तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं स्पॉटिंग द एरर काइंड ऑफ क्वेश्चंस. वन सेंटेंस यहाँ पर मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपको पता करना होता है किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है. Okay, so take a look at the first question. ये questions article पे based है by the way. So I'll launch the poll now for the first question. We won't be able to solve all the questions with the help of polls. कुछ questions में poll होंगे, कुछ में नहीं होंगे, because मुझे majority of the questions solve करना है आज. तो first question everyone, try जरा. No problem, last year. Come on, everyone. If you are not able to see the poll, you can type your answers in the chat box, Kushiki and anyone else. No, Ali. I'll explain, Surya. 5% A, 81% B, 2% C, 12% D. Okay. Let's take a look at the question now. The loss of jobs is regarded by some as an necessary evil in the fight against inflation. If you take a closer look at this question, we see this error here because I exactly told you that evil here is the noun and necessary here is an adjective, but you use your determiner before the adjective. So an is used before it, but it is used for this one. पर यूज पहले किसके हुआ है, नेसेसरी के, तो उसके साउंड के अकॉर्डिंग आता है. तो यहां पर एन वाला साउंड आ रहा है, मतलब वॉवेल नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है. कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं. तो इट शुड बी द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज अ नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन. क्या कुछ क्लियर हुआ? बोलिए भाई. ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड बिकॉज सो मेनी टेक्स्ट आर देयर. मैं सारे टेक्स्ट को रीड नहीं कर पाऊंगा, देन यू विल से सर आपने डाउट रीड नहीं किया. ठीक है, ए इज यूज्ड हियर बिफोर नेसेसरी बट इट इज यूज्ड फॉर इविल. कौन सा समर्थ, कौन सा डाउट? तो यहां पर जो एन है वो नेसेसरी के पहले यूज हुआ है, तो साउंड उसके अकॉर्डिंग आएगा. तो एन से स्टार्ट हो रहा है ना ये, तो एन ई, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम ए यूज करते, तो इट शुड बी ए. ठीक है, इट इज 9:45 बाय माई वॉच. ट्राई सेकेंड क्वेश्चन नाउ. समर्थ, हमको इविल का साउंड नहीं देखना है, हमको जो आर्टिकल है उसका जस्ट बाद वाले वर्ड का साउंड देखना है. %50 A, 3% B, 30% C, 17% D. Okay. Shaurya says, please explain one again. शौर्या, यू टेल मी कि यहां पर आर्टिकल कहां पर आया है? ठीक है, ये एन किसके पहले आया है? नेसेसरी के पहले. बट मैंने क्या कहा है, जो आर्टिकल होता है ए या एन, वो उसके बाद वाले वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड पे डिपेंड करता है. तो इस आर्टिकल के बाद ये वाला वर्ड आया है, उसका साउंड आ रहा है एन से, तो ये एन साउंड आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, हाँ या ना? तो हमको कॉन्सोनेंट साउंड में कौन सा आर्टिकल यूज करना होता है? ए आर्टिकल. वॉवेल साउंड में एन आर्टिकल. तो एन यहाँ पे नहीं आएगा, ए आ जाएगा.
आई डोंट नो शौर्य. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच. नाउ देयर इज एन एरर इन दिस क्वेश्चन. अगर मैं बोलूं क्वार्टर टू 10 का इसका मतलब क्या होता है? देर आर 15 मिनट्स टू 10 o'clock नाउ. मतलब 9:45 अभी टाइम हुआ है. बट कैन यू काउंट 9:45 टाइम कि एक 15 मिनट्स का टाइम पीरियड बाकी है? तो जब भी आप टाइम बताते हो आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते. तो ये ए जो यहां पर यूज हो रहा है दैट इज इनकरेक्ट हियर, बिकॉज क्वार्टर टू 10 जो है ये टाइम है. टाइम इज अनकाउंटेबल, राइट और नॉट? तो दैट मीन्स ये ए यहां पर इनकरेक्ट है. इट इज क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच. क्या कुछ क्लियर हुआ? नो, ए शुड बी यूज्ड. The first, so the word is also error in the first sentence. No, that is not an error. No, by my watch is correct. Time is not countable. You cannot count time. 1 time, 2 time, 3 time. Can you say that? Yes, Nisarg. Okay, Bhavna, you can speak now. Please raise your hand, Bhavna. Okay, I mean, you can speak now. Good evening, sir. Good evening, Bhavna. Sir, my doubt is that why can't we use in my watch instead of by my watch? See, in my watch is colloquially spoken, but by my watch is the formal preposition before this thing. तो बाय माई वॉच का मतलब होता है मैं अपनी वॉच में जब चेक कर रहा हूं, इट सेज दैट देयर इज क्वार्टर टू 10. बाय माई वॉच इज द करेक्ट यूजेज. इन हम preposition यहां पर यूज नहीं करते, क्योंकि आप घड़ी के मतलब वॉच के अंदर नहीं देख रहे हो, वॉच पर देख रहे हो, वॉच में देख रहे हो. गेटिंग इट? वॉच को खोल करके नहीं देख रहे हो. इन उसके लिए यूज होता है. All right, sir. Thank you so much. Okay. 1 second. Okay. Again, Arshia, by my watch is correct. Anything else is incorrect. What is the error in second part? Second part, there is no error. It is a की जगह it is quarter to 10 by my watch होना चाहिए था. तो okay. Bhavna, do you still have any questions? Otherwise, you can lower your hand. Yes, there will be a full stop. Third question. Geeta does not usually wear jewelry, but yesterday she wore ring. चलो try करो जरा third one. Third one, try everyone. Astha, I explained it that the formal usage is by my watch. Come on, come on, come on. %2 A, 1% B, 79% C and 17% D. Okay, देखते हैं. Geeta does not usually wear jewelry, but yesterday she wore ring. Now, do you think this ring is a noun? Tell me. Meher, as of now, you don't need to focus on this RSM part. पर अभी के लिए please I request you focus on the lecture itself. अभी हम questions discuss कर रहे हैं. अगर आप बाकी की चीज़ों के बारे में सोचोगे, आपका concentration यहाँ पर नहीं होगा. ओके, तो nouns and determinants जहाँ पर भी होगा वो आपको RSM मिल जाएगा. nouns वाले part में वो मिल जाएगा. I do not remember कि कौन सा topic किस RSM में होता है by the way. Okay, so ring is a noun. तो अभी तो मैंने बताया था मतलब पहले सेशन में दैट आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स. और कितने रिंग पहन रही है वो? 15-20 रिंग्स नहीं ना. तो यहां पर रिंग को आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा. शी वोर अ रिंग. एक ही रिंग लिखा ना, रिंग्स नहीं लिखा है. तो अ रिंग, राइट और नॉट? तो आंसर हैज टू बी ऑप्शन सी.
Geeta does not usually wear jewelry, but yesterday she wore a ring. इसमें A में एरर था बाय द वे, और इसमें B में एरर था. क्या कुछ क्लियर हुआ है? डू वी हैव एनी क्वेश्चंस नाउ? व्हाट इफ शी वोर रिंग्स, देन अदर रिंग्स लिखा होगा, ऑब्वियसली बात है. Okay, then fourth one, the police asked us about our movements on a night of crime. ठीक है, fourth try करो. Atharv, in that situation you'll have to quantify rings. For example, many rings, some rings, few rings, something like that. Yes. %A, 4% B, 86% C, and 9% of you have given option D as the correct answer. देखते हैं. The police asked us about our movements on a night of crime. Now, if you think about it, am I talking about any general night? Tell me. क्या मैं किसी जनरल नाइट के बारे में बात कर रहा हूं, और am I talking about a specific night, particular night? Which night? The night of crime. और मैंने बताया था एज अ थंब रूल, जब भी कुछ स्पेसिफिक बात का डिस्कशन होता है यू हैव टू यूज द बिफोर इट. जब भी कुछ जनरल बात का डिस्कशन होता है यू हैव टू यूज ए और एन बिफोर इट. Here we have a reference to something specific, and that is why A cannot be used here. It should be the night of crime. The night of crime. Clear, everyone? Do we have any questions now? Up to fifth question, any doubts? Okay, Krishnam, which हाँ फिफ्थ नहीं फोर्थ तक. कोई डाउट्स? सूरज सेज पुलिस के साथ आना चाहिए था ना. पुलिस के साथ क्या सूरज, क्या आना चाहिए था? पुलिस के साथ ए. वाई? पुलिस कैन बी काउंटेड. कैन यू काउंट पुलिस? मैंने बताया था पुलिस इज कलेक्टिव नाउन, उसको काउंट नहीं कर सकते. The police asked us, no a police. A police is incorrect all the time. Okay, chalo. Question number 5. In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. Which part has an error? Fifth one. चलो पोल लॉन्च कर रहा हूं. Everyone? Suraj, did you get it now? Come on, come on, come on. Avni, possessive nouns and possessive adjectives both are different. Possessive pronouns and possessive adjectives are different. Possessive pronouns जो होते हैं वो noun को replace करने के लिए यूज होते हैं. If I say you are mine, तो mine यहां पर क्या है? It's a possessive pronoun. बट अगर मैंने बोला you are my property now, so my यहां पर बन गया possessive adjective. Depends on the role that they are playing. ठीक है. लीडर बोर्ड भी देख लेते हैं. So Harshit is at the first position. Then we have Advait, Avni, Mahajan, Prakriti, Manan, Bhavya, Darshika, Archie, Surya, and Navya. Okay, good. Top 10. कोई बात नहीं अनुराग, और मेहनत करो, ऊपर हो जाओगे. Shanaz, in that case, you can join from your mobile phone if you want. वहां से ज्वाइन करके देख लो, या तो बाद में आपने रिकॉर्डिंग देख लेना. One second, I'll text her.
ओके चलो कहाँ थे हम. Question number 5. In science, the credit goes to a man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. क्या am I talking about any general man here or someone who convinces the world? This is something specific. और specific मतलब क्या आता है? The man is the noun here, तो उसके पहले the आएगा, तो it should be the man. The answer has to be option A. In science, the credit goes to the man who convinces the world, not to the man to whom the idea first occurs. अनुराग वो पोल एक्चुअली गायब हो गया है अब बिकॉज मैंने लीडर बोर्ड पे क्लिक कर दिया था. Shouldn't it be a man? No, no Surya. That would be the exact opposite of what we are looking for. This is a specific man, so it has to be preceded by the. Yes, उसमें भी the आएगा. Not to the man. Again, which man? To whom the idea first occurs. तो specific है ये भी, तो वहां पे भी the आएगा. Clear? Question number 6. It's only after the match is over that people realize how exciting it is. Question number 6 के लिए poll launch कर रहा हूं मैं. One second. कोई बात नहीं सर. Which sentence, Suraj? 4% A, 16% B, 49% C, and 30% of you have given option D as the correct answer. देखते हैं. हाँ, तो it is only after the match is over that people realize how exciting it is. तो D आपका ये पार्ट हो जाएगा by the way. Now it is only after the match is over. The match का मतलब क्या होगा? I am referring to some specific match, but क्या मैं specific match को refer कर रहा हूँ? I am talking about a general match, any match. और any के लिए मैंने article बताया था A. हाँ या ना? So it is only after any match is over that people realize how exciting it is. तो यहाँ पर कोई भी article नहीं आना चाहिए. It is only after a match. Sorry, कोई भी article नहीं. Sorry, the article नहीं आना चाहिए. It is only after a match is over that people realize how exciting it is, because it is not a specific match, it is a general match. Could be. Yes, Shaurya, what do you want to speak? You can speak now. सर वो कैसे पता चल रहा है कि वो जनरल मैच के बारे में बात हो रही है? मुझे एक बात बताओ, कौन सा मैच खत्म हुआ यहाँ पर? What do you think? Do you have any idea which match is over? नो सर. No, that means it is general. अगर specific होता तो हमको पता होता किस मैच की हम बात कर रहे हैं. तो आई एम टॉकिंग अबाउट मैच इन जनरल नाउ. दैट इज वाई यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल आने वाला है. एक थंब रूल मैंने आपको अभी भी बताया था पहले. द थंब रूल सेज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज जनरल, ए या एन आएगा. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज स्पेसिफिक, तो द आएगा. सिंपल सी बात है. तो अभी यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ए आ जाएगा. क्लियर? यस सर. Dhruv Garg, you can speak now. Good evening, sir. Good evening. Sir, my confusion was like in the sentence shouldn't be how exciting it was instead of is. See, it is only after a match is over that people realize how exciting it is. मैच होने के बाद में रियलाइज कर रहे हैं ना, तो इट इज यहाँ पर भी तो प्रेजेंट टेंस आया है. तो प्रेजेंट पास्ट तो हम नहीं कर सकते, एक ही टेंस यूज करना पड़ेगा. Okay, sir.
Okay, Thank you, sir. that's why. Okay. Any other doubts? Anyone else? Yes, Manan. Any other question? Can we use realizes? People है ना word. People is plural. It has to be plural word verb only. Please explain question 6 again. It is only after the match is over that people realize. देखो क्या हमने टेंस डिस्कस किया है अभी तक के आर्यन? Have we discussed tenses? No. So जो पॉइंट की आप बात कर रहे हैं वॉज आएगा या इज आएगा, ये वाला पॉइंट आपको टेंस में कवर हो जाएगा. जब भी टेंस का सेशन होगा इट विल बी कवर्ड कि वहां पर वॉज क्यों नहीं आएगा या इज ही क्यों आएगा या विल क्यों नहीं आएगा. ठीक है, वो टेंस बेस्ड है. अभी के लिए हमारा फोकस जो है वो नाउन्स एंड आर्टिकल्स या डिटर्मिनर्स पे है, तो उसी पे लिमिट कर लेते हैं. मोहम्मद उस्मान, यू कैन स्पीक नाउ. Am I audible, sir? यस. सर मेरा ये क्वेश्चन था दैट जैसे सेंटेंस है इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर, सो यहाँ पे दैट की जगह दोज नहीं लगा सकते, दैट इट इज नहीं. ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दोज पीपल रियलाइज हाउ नहीं, एक्साइटिंग दोज इट इज. पीपल का मतलब हो जाएगा वी आर रेफरिंग टू पर्टिकुलर पीपल. दैट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मैं दैट को एज अ कंजंक्शन यूज कर रहा हूँ टू कनेक्ट टू आइडियाज. पहला है जब मैच ओवर हो रहा है, दूसरा हो रहा है पीपल रियलाइज समथिंग. इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आई एम यूजिंग द वर्ड दैट. ये दैट पीपल के लिए यूज नहीं हुआ है. डिड यू गेट इट? Okay, if you have no doubts, shall we proceed now? प्रज्ञा, आपका जो डाउट है वो भी टेंस के बाद क्लियर हो जाएगा. आर्यन, आपका जो डाउट है वो भी टेंस के बाद क्लियर हो जाएगा. एनीवन जिसको ऐसा लगता है कि वहां पर वॉज आना चाहिए या इज आना चाहिए या विल आना चाहिए, प्लीज आप कुछ सेशंस का वेट करो. जब टेंस का सेशन आएगा वो कवर हो जाएगा. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर. ओके, 7th बिना पोल के सॉल्व करते हैं अभी वाला. चलो, क्योंकि टाइम काफी हो रहा है, अभी आर्टिकल के साथ साथ नाउन्स भी डिस्कस करना है. तो ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर. व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू सिस्टर्स तो हमारा कौन सा डिग्री आता है? कंपैरेटिव डिग्री ही आता है. तो कंपैरेटिव डिग्री बेटर ही है. बट द पॉइंट इज यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज द बेटर वन. बिकॉज बेटर के बाद में आपको बताना पड़ेगा कि आप किसको रेफर कर रहे हो. अब यहां पर दो में से एक स्पेसिफिक बन जा रही है, हाँ या ना? बिकॉज वो स्पेसिफिक बन जा रही, तब आपको यहाँ पे शी इज द बेटर बोलना पड़ेगा. तो बेटर के साथ आप क्या बोल सकते हो? शी इज द बेटर वन. ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज द बेटर वन. तो ये बेटर किसके लिए आ गया? वन के लिए. और उसके पहले द इसलिए आया बिकॉज नाउ आई एम रेफरिंग टू वन स्पेसिफिक सिस्टर. क्या कुछ समझ में आया? द बेटर इज आई एम रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक सिस्टर एंड वन आप चाहो तो डाल सकते हो बाद में. द सुपरलेटिव के साथ आता है बट यहां पर आएगा. दिस इज अ स्पेसिफिक केस. यस आस्था, अनम्यूट योरसेल्फ. So in this question, we have inserted one by ourselves. So if there Yes. is no one, then it can be correct. Sorry, if there is. If there is no one in the sentence, like Mhm. she is the better one, so can the sentence be See, correct on its own? You can write this sentence in two ways. The first one is of the two sisters, she is the better one. Another way to write it, of the two sisters, she is the better. Both are correct. Okay, sir. There is no problem with either of them. Okay, sir. Thank you. Okay. चलो, no doubts, आगे बढ़े. Not incomplete कर्तव्य. In that situation, you can reverse the order. For example, she is the better of the two sisters. That would be correct. तो सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है वो तो हम पे डिपेंड करता है. मैं से सर इफ द मैच होगा देन पीपल के पीछे क्या लगेगा?
इफ द मैच, मतलब दैट ही लगेगा तब भी। यहां बेटर ऑफ का मतलब कुछ और होता है अनुभव। बेटर ऑफ इज समवन हुज हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल, तो वो होता है बेटर ऑफ। हम लाइफस्टाइल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कहां पर, हाँ वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली। ऑफ द टू सिस्टम मतलब आई एम कंपेयरिंग टू सिस्टर्स ना। ओ डबल एफ इंडिकेट्स सेपरेशन, वी आर नॉट सेपरेटिंग बोथ ऑफ देम। यस कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। किस में एरर है? Once again, the session is not based on tenses, so there will be no errors based on tenses. हाँ देखो जरा आप, अब 3 चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैं इधर लिख देता हूं। हाँ एवरीवन जरा फोकस कर लो अब अच्छे से। चलो, देयर आर 3 वर्ड्स। पहला होता है फ्यू, फिर होता है अ फ्यू, और फिर होता है द फ्यू। ये तीनों एडजेक्टिव्स होते हैं, इन अ वे डिटर्मिनर्स होते हैं। फिर दूसरा होता है लिटिल, फिर होता है अ लिटिल, और फिर होता है द लिटिल। ये तीनों भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। बट अगर इन तीनों के डिफरेंसेस की बात करें तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को हम यूज करते हैं विद ओनली काउंटेबल नाउन्स। ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ में आता है। लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल, दीज 3 आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये उसके साथ में आता है। बट इनकी मीनिंग्स क्या होती है? तो फ्यू और लिटिल की मीनिंग सेम होती है। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, ऑलमोस्ट नथिंग। और ये एक नेगेटिव वे में यूज होता है। जब हमको बोलना होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट एक आध पर्सन आया था, तो ऑलमोस्ट कोई नहीं आया ये बोलना चाहते हैं, उसके लिए फ्यू और लिटिल यूज होता है। अ फ्यू अगर मैं बोल रहा हूं या अ लिटिल में बोल रहा हूं, तो इट्स अ पॉजिटिव रेफरेंस टू समथिंग, दैट मीन्स सम अमाउंट और सम क्वांटिटी ऑफ समथिंग, सम अमाउंट और सम क्वांटिटी और सम नंबर ऑफ समथिंग। ये एक पॉजिटिव रेफरेंस होता है। द फ्यू और द लिटिल का यूज हम करते हैं टू रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक, टू रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक। अब इसका मैं एग्जांपल देकर के आपको बताता हूं। अगर मैंने बोला द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट yesterday, the few students who were present yesterday are absent today. Now you tell me, am I talking about some general students? Am I talking about some general students? No. Obviously, I am talking about those few students who were present yesterday. So does it become specific? Yes, it becomes specific. That means that then the has to come here. So this is the use of the few. और द लिटिल कहाँ जाएगा? जब आप अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आर काउंटेबल, तो फ्यू आ जाएगा। अगर मैंने बोला द लिटिल मिल्क दैट वॉज प्रेजेंट इन द बोल इज नॉट देयर एनी मोर, तो द लिटिल किस लिए आया? बिकॉज मिल्क आया, दैट इज अनकाउंटेबल। डू वी हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, डाउट्स? बोलिए। सर वेरी फ्यू का मीनिंग बहुत कम। कृष्णम सर पर स्क्रॉल करना था। ओके, फिर से चले आते हैं। ये लो, डन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो इट इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स। नो, कौन से फ्रेंड्स? वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। मतलब इट इज स्पेसिफिक, तो आ जाएगा द फ्यू। स्पेसिफिक हो रहा है ना, तो द फ्यू। तो लूज द फ्यू फ्रेंड्स, विच द फ्यू फ्रेंड्स, विच सॉरी whom वी मेक ड्यूरिंग आवर कॉलेज डेज, सॉरी स्कूल डेज, तो द फ्यू। तो
बी में एरर है यहाँ पर। क्लियर हुआ? चलो। There were a number of intelligent gentlemen at the party, but it was Mr. Subramaniam, an eminent scientist, who remained a center of attraction. Who remained a center of attraction? No. I am referring to a particular person, right? तो ये a के बदले क्या आएगा? The, who remained the center of attraction, specific, right or not? The center of attraction. Everyone was focused on him. Right. 10. I have been informed that Mr. Sharma, the director and chairman, will visit Patna the following month. अच्छा, इसका एक concept मैं बता देता हूँ एक बार. Let's say I have two sentences. Okay, एक बार बहुत ध्यान से देखो. The poet and the politician has or have arrived, और एक सेंटेंस है द पोएट एंड पॉलिटिशियन, सॉरी ये पॉलिटिशियन है, हैज और हैव अराइव्ड. नाउ व्हाट डू यू थिंक शुड कम हियर इन द फर्स्ट वन? जब भी ध्यान से ये देखना, दो पोजीशंस की अगर बात हो रही है तो पोएट एक है, पॉलिटिशियन दूसरा है, लेकिन दोनों के आगे द आया है. The is used here. The is used here. When we use the before both the positions, इसका मतलब poet एक person है, politician दूसरा person है. And because there are two persons, it has to be plural. So the poet and the politician have arrived. But अगर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक poet और एक politician दोनों सेम हो सकते हैं? बोलो, हो सकते हैं ना? One person can be both a poet and a politician. तो इन दैट सिचुएशन आप पहले वाले वर्ड के आगे द यूज करोगे सिर्फ एक बार. यहां पर द नहीं आएगा. दैट मीन्स दिस इज ओनली वन पर्सन नाउ. तो यहां पर ये सिंगुलर हो जाएगा. क्या कुछ क्लियर हुआ है? बोलिए भाई. Am I going fast or slow, or is the pace okay? हाँ, तो इट इज वन पर्सन ओनली सेकेंड वाले में. चलो. क्वेश्चन नंबर 10. आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर. अब एक ही पर्सन है मिस्टर शर्मा, तो मतलब एक ही पर्सन क्या है, दो पोजीशंस को होल्ड कर रहा है. क्या क्या है वो? डायरेक्टर भी है और चेयरमैन भी है. तो क्या हो जाएगा? द डायरेक्टर एंड चेयरमैन. यहां पर द नहीं आएगा, तो सी में एरर है. एक ही पर्सन है क्योंकि द पहले वाले के साथ आएगा. क्लियर एवरीवन? चलो, अब कुछ क्वेश्चंस नाउन्स पे डिस्कस कर लेते हैं. टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. अब ट्राई करो जरा. ट्राई. These are based on nouns. Come on. क्या बोर हो रहे हो क्या तुम लोग? कोई बात नहीं अनुराग. चलो, 4% A, 18% B, 31% C and 46% D देख लेते हैं. My sister has read pages after pages of the Bible. अब the Bible तो करेक्ट है बिकॉज होली बुक्स के आगे हम द लगाते, सबको पता है. Wait, some people have some questions. Shaurya Agrawal, do you have any questions? Mohammad Usman, Anubhav Jain, Astha and Samriddhi. If any one of you does not have any questions, please lower your hand. Okay, fine. So my sister has read pages after pages of the Bible. ये part तो correct है, there is no error here. This part has an error. You do not say pages after pages. आप ऐसा नहीं करते हो कि 10-10 pages एक साथ पलट देते हो.
एक पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज करते हो ना, राइट? तो दैट मीन्स द स्टैंडर्ड फ्रेज हियर इज पेज आफ्टर पेज. ये स्टैंडर्ड फ्रेज है. तो सी में एरर है. इट शुड बी पेज आफ्टर पेज. माई सिस्टर हैज रेड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2. ट्राई एवरीवन. Try. Very common mistake. No, Rupansh, incorrect. %, 16% B, 24% C and 30% D. देखते हैं. I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters. अब देखो, ये फ्रेज जो होता है, दिस इज इनकरेक्ट. कजन सिस्टर्स कुछ नहीं होता, कजन ब्रदर्स कुछ नहीं होता. द करेक्ट वर्ड इज कजन्स. सो सिस्टर्स ब्रदर्स नहीं ऐड किया जाता है उसमें. ओके. Avni says, but sir, you told that when and is used, then it is plural. In which situation? हाँ, ये तो प्लॉरल तो है. मैंने कब कहा सिंगुलर है? प्लॉरल ही है ये तो. राइट. दिस द करेक्ट वर्ड हियर इज कजन्स. कजन सिस्टर्स, कजन ब्रदर्स कुछ नहीं होता है. वो इंडियनाइजेशन है हमारे वर्ड का. द एक्चुअल वर्ड इज कजन्स. राइट. सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क. ये क्या होता है भाई? देखो, जो एक स्टैंडर्ड फ्रेज होता है वो होता है टू टेक ग्रेट पेन्स. ऐसा कुछ होता है. अब ये ग्रेट को आप चाहो तो यूज करो, अदरवाइज आप टू टेक पेन्स भी बोल सकते हो. अब ये टू टेक पेन्स का या ग्रेट पेन्स का मतलब होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग. टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, दैट इज द मीनिंग. टू टेक ग्रेट पेन्स. राइट. तो जो पेन्स यहां पर होता है वो प्लॉरल में यूज होता है. यहां पर पेन्स ये एक स्टैंडर्ड फ्रेज है, इडियम जिसको बोला जाता है. सो ही टेक्स पेन्स आएगा यहां. ऑप्शन बी, पेन्स. क्या कुछ समझ में आया है सर? बट ए भी तो आएगा ना क्वेश्चन 2 का. कैसे? धवल, आई वेंट टू अ टेम्पल. नो, टेम्पल के लिए आप द यूज करोगे. आई वेंट टू द टेम्पल विद माई आंट्स. Avni, I am saying this is plural. This is not singular at all. कहां पर सिंगुलर बोला मैंने अभी? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ अवनी? कैन यू रेज योर हैंड? अवनी, हैंड रेज करोगे आप? ओके सर, थर्ड फिर से बता दूंगा. देखो धवल, इवन दो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टेम्पल, आपको जब भी टेम्पल हम यूज करते तो उसके आगे द ही आता है. ठीक है. इट्स अ पर्टिकुलर प्लेस बिकॉज. तो टेम्पल के आगे द आएगा. आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन्स. ओके. नाउ ही टेक्स पेन, ये एक स्टैंडर्ड फ्रेज होता है. ही टेक्स, सॉरी, टू टेक ग्रेट पेन्स और टू टेक पेन्स. तो यहां पर पेन वर्ड यूज नहीं होता है, पेन्स वर्ड यूज होता है, जिसका मीनिंग मैंने यहां पर लिखा है. ये एक स्टैंडर्ड इडियम है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है. नो मेहर, वी आर नॉट रेफरिंग टू इट एज प्लॉरल. मैंने वही बताया, इट्स अ स्टैंडर्ड फ्रेज. ये इंग्लिश में पहले से बना हुआ है, इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं. क्या वो अभी क्लियर हुआ उद्भव? डू वी हैव एनी क्वेश्चंस नाउ, एनी डाउट्स, और शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन?
Okay, Avni. Yes, unmute yourself. Good evening, sir. Good evening. बताओ. Sir, am I audible? Yeah. Sir, in the example you gave, the poet and politician has or have arrived. So, has should be used. नहीं, उसका रीजन यहाँ पर ये है कि जब आप द एक बार यूज कर रहे हो तो इवन दो आपने एंड वहां पर यूज किया है बट यू आर रेफरिंग टू द सेम पर्सन, और एक ही पर्सन दो पोजीशंस को होल्ड कर सकता है बट पर्सन तो एक ही है, तो एक पर्सन के लिए हम प्लूरल वर्ब यूज नहीं कर सकते, But sir, सिंगुलर वर्ब आएगा. how will we know that when to? If there are two articles, the and the, तब दो persons हैं. If there is only one article, then एक ही person है. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. चलो. The manager put forward a number of criterions for the post. अब बताओ. अब ये जो वर्ड है criterions, ये कोई वर्ड ही नहीं है. The actual word is criterion. ये criterion होता है singular. And the second word is criteria, which is plural. Okay, so the manager put forward a number of criteria for the post. मतलब बहुत सारे criteria उसने लगा दिए. ठीक है, criterions कोई word नहीं होता है, it should be criteria. कुछ क्लियर हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है that I am not able to explain the questions to you guys. Is that so? Puts forward, अगर present में बात हो रही तो put forward, अगर past में बात हो रही तो put forward. तो it is in the past right now. अंशुमन. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. I like the poetries of, कहाँ गया, हाँ, Byron and Shelley. अब प्रॉब्लम यहां पर ये है, द वर्ड पोएट्रीज जो होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है. पोएट्री कैन नॉट बी काउंटेड, तो उसको आप पोएट्रीज नहीं लिख सकते. एक्चुअल वर्ड इज ओनली पोएट्री. आई लाइक द पोएट्री ऑफ बायरन एंड शली. ठीक है, पोएट्रीज इज नॉट अ वर्ड. कुछ क्लियर हुआ? The beautiful surrounding of the place enchanted me. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सराउंडिंग के दो मीनिंग्स होते हैं. सॉरी, यहां तो आंसर की ही है. पहला मीनिंग ऑफ सराउंडिंग क्या होता है? सॉरी. सराउंडिंग के दो मीनिंग होते हैं. तो पहला सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? द एरिया अराउंड यू इज व्हाट वी कॉल योर सराउंडिंग. और दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है सराउंडिंग्स. ये प्लूरल नहीं है बट इसका मतलब कुछ और है. सराउंडिंग्स का मतलब होता है एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू. एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू इज योर सराउंडिंग्स. तो अब कौन सी मीनिंग मुझे चाहिए? नाउन्स ओशियन. नो, द बायरन इज इनकरेक्ट. बी कैपिटल है, प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी द नहीं आता है. तो कहां गया क्वेश्चन नंबर 6. द ब्यूटिफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस, दैट मीन्स उस प्लेस के आसपास जो भी था, enchanted me. सराउंडिंग्स, इट शुड बी सराउंडिंग्स. ओके, तो आंसर हैज टू बी सराउंडिंग्स. Can there be by instead of in 5? No. अगर by यूज करना है तो आपको written by करना पड़ेगा. written by. Done. चलो. Divyansh, you can speak now. Sir, my doubt is that like you are telling several words which don't have any meaning, and like criterion doesn't have any meaning, but criteria is, sir, no rule applies here. How would we will be able to know that the word is existing or not? Right. So for that you will need to refer to some basic books of grammar. For example, Wren and Martin or S.P. Bakshi. There you may find the list of these kind of words.
Okay, sir. Thank you. Okay. Can you explain surroundings? Surroundings are basically everything around us. जो जो चीजें मेरे आसपास है वो मेरी सराउंडिंग्स है. अनुभव. Surroundings, the same thing. Everything that is around me is my surroundings. Surrounding क्या होता है लेकिन? Surrounding का मतलब होता है, कहाँ लिखा है मैंने, इधर लिखा था क्या? हाँ, the area around you is your surrounding. For example, there is a park surrounding me. यहाँ पर एक पार्क है. क्लियर हुआ? Okay. Now next one. No porter being available, he carried all his luggages himself. अब यहां पे जो प्रॉब्लम है वो इस वर्ड में है, लगेजेस इज अनकाउंटेबल. द करेक्ट वर्ड इज लगेज. तो नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल, ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ. लगेजेस इज नॉट अ वर्ड. क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट. द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलैबोरेटली कार्व्ड. अब यहां पे एक और पॉइंट आता है, वो है अपोस्ट्रोफी के यूज के बारे में. अपोस्ट्रोफी क्या होता है? अपोस्ट्रोफी ये और एस. तो इस पॉइंट का ध्यान रखना दैट अपोस्ट्रोफी एस इज यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग्स ओनली. लिविंग बीइंग्स के साथ आता है अपोस्ट्रोफी. अगर वो लिविंग नहीं है तो उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है. तो क्या बन जाएगा? वो टेबल की बात चल रही है यहां पे. क्या टेबल लिविंग होता है? नो. तो क्या करना पड़ेगा? द लेग्स ऑफ द टेबल, ये वाला स्ट्रक्चर डालना पड़ेगा. यहां लिख देता हूं, द लेग्स ऑफ द टेबल. तो जो भी लिविंग होता है उसका पोजेशन शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस आता है, और नॉन लिविंग के लिए ऑफ वाला स्ट्रक्चर आता है. द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग. नाउ सीनरीज अगेन इज नॉट अ वर्ड, द करेक्ट वर्ड इज सीनरी. तो यहां पे आ जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग. सीनरीज नहीं होता है. क्लियर? बोलिए भाई. जो वर्ड्स मैं यहां पर बता रहा हूं, दीज आर कॉमनली गिवन वर्ड्स इन द एग्जाम्स, एंड इसीलिए वो वर्ड्स को यहां पर चूज किया गया है. जैसे देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ लिख देता हूं. फॉर एग्जाम्पल जो एक वर्ड होता है फर्नीचर, फर्नीचर इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. इक्विपमेंट सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. मशीनरी सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. मशीनरीज कुछ नहीं होता. एयरक्राफ्ट सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ. एयरक्राफ्ट्स नहीं होता. दीज आर ऑलवेज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. क्लियर? 10 वाला पूल कर दीजिए. देर आर रूल्स ओशीन, दीज आर द वर्ड्स विच आर द रूल्स. ये वर्ड्स ही हमारे रूल्स हैं. द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल. चलो इसके लिए पूल लॉन्च कर रहा हूं मैं. 10th क्वेश्चन एवरीवन. 10th ट्राई करो. कोई बात नहीं अनुराग, मैंने नाउन्स का नहीं आर्टिकल्स का आंसर शो किया था अली. Still, they see some people are giving wrong answers. %4 A, 29% B, 31% C, 36% D. चलो. The driver showed great talent in keeping the damaged car under control. Now यहाँ पर कोई भी error नहीं है. This is grammatically completely correct. This is correct. D is the sorry E, हाँ D मतलब no error is the correct answer here. क्या कुछ clear हुआ? C में क्या error है? Anurag, the great. No, the great talent is incorrect. वो इनकरेक्ट होगा धवल. सी में जो द डैमेज्ड कार लिखा है दैट इज कंप्लीटली करेक्ट. वी आर रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर कार. कांट वी यूज बाय इंस्टेड ऑफ इन.
कहाँ पर? When I entered the room, sorry, the driver showed great talent in keeping. No, by नहीं आएगा, in आएगा. A great talent. The driver showed a great. No, you cannot count talent, right? A कैसे आ जाएगा? कोई बात नहीं धवल, होता है. चलो, so what if there was under his control that the driver showed great talent in keeping the damaged car under his control? Same thing, कोई problem नहीं है. Okay, so thank you everyone for joining me in this session. मैं ये दोनों फाइल्स को आज तो नहीं, कल तक अपलोड हो जाएगी और यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन. अब नाउन्स और आर्टिकल्स के दोनों के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है इन दोनों इस शीट में से. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप उन क्वेश्चंस को पहले अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो. अगर वहां पर रिस्पॉन्स नहीं आता है कुछ टाइम तक, तो यू कैन देन सेंड इट टू मी, बिकॉज मैं जनरली बहुत बिजी होता हूँ, तो मेरे आंसर्स आप लोगों को काफी लेट मिलेंगे. उससे पहले शायद आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप में मिल जाए. ठीक है, चलो. आर्यन, आई डू नॉट नो द RSM नंबर. एक बार नाउन्स वाला आपने एक्सरसाइज चेक करना, उसमें आपको मिल जाएगा नाउन्स एंड आर्टिकल्स. शायद RSM 6 है, एक बार चेक करना. Here, because by does not have the right meaning here, by is a different preposition, it has different meanings. हम prepositions वाले में इसको एक बार फिर से क्लियर कर लेंगे. There are a lot of aircraft, correct दिव्यांश. लीडर बोर्ड देख लेते हैं. Advait first position, Manan second, Archie third, congratulations top 3. Then we have Prakriti 4th, Harshit 5th, Bhavya 6th, Avina 7th, Darshika 8th, Bhaskar 9th and Dhruv Garg at the 10th position. Congratulations people. चलो bye, good night, take care everyone. एक बार भक्ति मेंटोर से बात कर लो, उसको ओपन कर देंगे. चलो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर.